Hello students, I hope all of you are doing well. This is our first video which is going to be in English language. I hope this video will be beneficial for you. As you can see in the thumbnail and also in the title, we are going to learn the chapter known as Resource and Development, which is the first chapter of Geography of class 10 CBSE board. Okay, I will going to post more videos related to this chapter, but my focus will be on two types of videos. Okay, the first will be in English language, in which I am going to speak in English more, but that type of video will be overview videos, okay, or the summary type of videos. But in second kind of video that which is I'm going to post later after this video, in that video I will speak in Hindi more, and because in that video I'm going to give you a detailed explanation, and wherever I am going to give you a detailed explanation, I want more student to clearly understand that. So वहाँ हम हिंदी यूज़ करेंगे, but this kind of video that is going to be the summary type of videos or the overview type of videos, in this kind of video I am going to speak in English. It will be beneficial for me and also for you. है ना, तो इंग्लिश बोलेंगे तो आपका भी डेवलप होगा, मेरा भी होगा. तो दैट इज़ द मेन थीम और द पर्पस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ वीडियोस. एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा. ओके, इससे पहले जितने भी वीडियोस आए थे ऑल वीडियोस में, ओके, सब वीडियोस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम गोइंग द यूजिंग द फर्स्ट कैमरा, फर्स्ट मतलब फ्रंट कैमरा. ओके, एंड आई बिलीव दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट knowledgeable video that you are going to see. So let us start the chapter. As you have heard, I have the PDF of this chapter which is around 13 pages. Okay, so let me summarize this 13 pages for you, and hoping for the best for you and also for me. So let us start. Okay, the first page, if you have the NCERT, please open this, or otherwise you can just listen to me. Okay, so in the first chapter or the first page, you can see there is the definition of resource. What is resource? The first line says that resource, I am going to read this, you just have to hear me. Okay, the answer is everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. This is known as resource. Okay, हिंदी में कहा जाए अपने आस पास अपने सराउंडिंग में वो हर चीज़ जो भी आपके यूसेस को पूरा, आपके नीड्स को पूरा कर सके, उन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दम रिसोर्स. ओके, बट देर इज़ वन मोर कंडीशन. आई एम गोइंग टू read the next line, few more lines. Just hear me. The next line says that it is technologically accessible. It is, what is the resource? The resource is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. मतलब यहाँ तीन वर्ड बोला गया है. रिसोर्स वो चीज़ होना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो. मतलब आप वहाँ पर कोई ऐसा यंत्र बना पाओ जो वहाँ से जाके वो सामान, वो रिसोर्स को लेके आ सके. तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए. द स्पेलिंग इज कॉल्ड इकोनॉमिकली फीजिबल. हम जरा लिख देते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूवर्स. Even I'm going to draw a diagram, a pyramid type diagram, a triangular diagram. It will be more beneficial. Okay, it is also given in the NCERT first page. If you are able to see, you can see here, or no, then I will going to explain it here. Let me draw the diagram. There is a term known as human being here in the center of the triangular diagram. Then here is a term known as technology. What is technology? We will discuss later. Then there is a word known as institution, and third is there is a known as nature. Okay, the basic idea behind this diagram is that all kind of resources that you get is from the nature. After getting the resource from the nature, there must be a technology that we have which can be used to access the resource. है ना, कोई भी रिसोर्स कहीं पड़ा, उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत होती है. तो रिसोर्स मैटर करता है. थर्ड, इंस्टीट्यूशन. व्हाट डू यू मीन इंस्टीट्यूशन? सपोज दैट देश में कानून बनाने का काम क्या एग्जीक्यूटिव करता है? नो, इट इज़ द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर. सपोज दैट बुक पब्लिकेशन NCERT का काम होता है, वो तुम्हारा CBSE बोर्ड का काम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, फैसला सुनाने का काम जुडिशरी का होता है, पुलिस का नहीं होता है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. विदाउट दिस
they are useless. Without this, these both things are useless. Without a particular or peculiar, what kind of word, anything, institution, we are, these are useless. मतलब हर चीज ये सब एक दूसरे तीसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, और ये सब किससे लिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बींग्स. तो रिसोर्स उसको कहते हैं. द फर्स्ट आंसर इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द नेचर इज नोन एज रिसोर्स. सेकेंड थिंग which is technologically accessible and economically feasible. And what is the meaning of feasible मतलब होता है, if you google it, the answer will be जो लिया जा सके, जो पाया जा सके, जो खरीदा जा सके. So suppose that I am going to give you 1,000 rupees and I am going to tell you that go and just buy an iPhone. Is it going to happen? 1,000 रुपये देके क्या iPhone खरीद सकते हो? Answer is no. So it is not economically feasible. But in here, if I ask you, I am going to give you 1,000 rupees and I am going to tell you just go and buy some momos. हाँ ना, 10 रुपये का मोमो खाना है, 1,000 रुपये में खरीद पाओगे? आंसर कंफर्म, आप खरीद पाओगे. सो इट इज नोन एज इकोनॉमिकली feasible. ओके. एंड द थर्ड टर्म दैट इज कॉल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, जो भी है ये भी लिख देते हैं. And what is the meaning of culturally acceptable? I don't know why I'm repeating this word again and again. Okay, so culturally acceptable का मतलब होता है, suppose that you have got something precious, okay, something precious, very precious, which belong to a particular community or particular tribal group that is living in the area, and if you are trying to take that thing from there, will the group or will the tribal people or will the community will allow you to take that? Answer will be no. If you will try to force them or you will try to take it forcefully, they will fight for it, है ना. मतलब कोई चीज़ जो आप उनसे छीनना चाहोगे तो वो आपको मारेंगे, लड़ाइयाँ होगी, ये सब होगी. तो आपको ये देखना है कि वो सामाजिक रूप से क्या आप वो ले सकते हो, क्या लोग उसमें शांत रहेंगे या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये भी देखना पड़ता है. ओके, सपोज दैट कहीं नारियल का पेड़ है, बट वो नारियल का पेड़ आपके पड़ोसी के घर में, तो क्या आप जाके कल्चरली उनसे लोगे? तो मतलब लोगे तो देगा तो अलग बात है, लेकिन क्या तरीका से क्या आप जाके चुराने वाला तरीका? तो आंसर है नो. तो इट मस्ट बी culturally acceptable. So these are the things. Well, there are three main points in the first page of this chapter, and the three things are: first, the definition of resource; second, the three terms, which is one of the most important terms. है ना, वो तीन terms कौन कौन से हैं एक साथ लिख देते हो, it will be more better for you, है ना. So let me write the three words together here after erasing these things. Why writing again? Just I am continuing these things: economically accessible, feasible. This is the point number 2 in your NCERT. This is the point number 3, and the point number 1, technologically what? Accessible. Okay, so these are the things accessible. So this is the three terms which define the term resource, and after that now we are moving towards the next thing. After that let me show you what is there in your NCERT. There is a flow chart. Okay, there is a flow chart in the first chapter of the first page of this chapter, which is basically a simple flow chart, simple diagrammatical representation. For example, here you can see that the resource, if you are not able to see, then please take your NCERT, it will be more better for you. Okay, here the resource are divided into two parts. One is called the natural and the second is known as the human means artificial or synthetic. Okay, so there are two types of resources. One is known as natural resource and second is known as man-made resources, or the artificial resource or the human resources. Okay, the natural resources are again classified into two types. One is known as renewable resources and one is known as non-renewable resources. What is renewable resources? नाम में ही आंसर है, renew कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास LIC का पॉलिसी है या कुछ है तो आप उसको क्या करते हो, renew करते हो. तो renewable means that can be used again and again after a certain period of time. But non-renewable means अगर एक बार वो खत्म तो मतलब खत्म, है ना. तो they are exhaustible. तो ये भी एक interesting word है. I am going to give you the alternative names here. If you want to see, you can. Okay, let me write the terms. And also please suggest me in the comment section or somewhere else that in the future times should I speak this type of languages or not, or should I speak only in Hindi for the better understanding of viewers. I am just trying to improve my English and also to give you a basic idea that we can speak in English. Okay, there is a fear in our heart that we can't speak in English because we never get people with whom we can talk in English. That why our English is weak. Okay, I
personally believe the main reason or the basic reason or the prime reason or the main reason behind the lack of speaking English we have, the problem is because we don't we never talk to each other. Whenever we start talking to each other, our English will definitely improve, and that's my guarantee. Okay, so even I'm speaking English after a long time for this video purpose, and I hope in the upcoming videos I can improve my English as more I can. Okay, so let me write the three new terms here, not three new terms, the alternative names. For example, renewable resource. The renewable resources are also known as नॉन एक्सॉस्टेबल, जो ख़त्म ना हो सके, हाँ ना, तो उसको नॉन एक्सॉस्टेबल कहेंगे. बट द अनदर टर्म दैट वी हैव लर्न दैट इज कॉल्ड द, इसके ऊपर लिख देते हैं कौन सा, नॉन रेन्यूएबल. नॉन रेन्यूएबल मतलब क्या है, जो ख़त्म हो सकता है, जो दोबारा नहीं बन सकता है. नॉन रेन्यूएबल मतलब क्या होगा, ये एक्सॉस्टेबल होगा, जो ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो इट इज़ एक्सॉस्टेबल. सो आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू for better your understanding, है ना. And if there is any spelling mistake, just please ignore it. I'm not that pro type of teacher, pro player. I'm just a new player now. So this is the basic idea that you have to learn in the first page of this chapter. So this if you want to complete this flowchart by your own, you can. There is nothing such more important, I believe. And एग्जाम में से पूछा भी नहीं जाता, तो ये अभी जितना भी हम आपको बोलें, अगर आप पूछो सर एग्जाम में कुछ आएगा, so my answer is in the periodic test or in the small term unit test, chapter test, it can be beneficial. Okay, or for your better knowledge it is very useful, but for the final exam point of view it is baseless, it is useless. Okay, it is my personal point of view, because हम जहाँ तक जानते हैं, हम जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, ये सब पूछा नहीं जाता, बस आपको नॉलेज को एनहांस करेगा, बूस्ट करेगा, नथिंग एल्स. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, द सेकेंड पेज. और even in the first page there is the little hint for the second page, that is called, in the second page you are going to learn about the types of resources we have, okay, in the nature or in the environment. So ये पहले पेज में भी उसको क्लासीफाई किया, जैसे कि on the basis of origin. On the basis of origin there are two types of resources. One is known as the biotic resource and second is known as the abiotic resource. What is biotic? Biotic means लिविंग रिसोर्सेज, है ना, जैसे जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन होता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. बट जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सपोज दैट यू आर दिस बोर्ड, है ना, ये बोर्ड क्या है, इट इज ए एबायोटिक रिसोर्स. दिस फोन, इट इज ए एबायोटिक रिसोर्स. सो एनीथिंग दैट इज नॉन लिविंग इट इज एबायोटिक और एबायोटिक. कुछ लोग ए, कुछ लोग आप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट एन अनदर नेम विच इज गोइंग to be a English word game. There is nothing more special about it, just you have to understand my understanding or anything else. Okay, sexual, it is sexual, but okay, there is a problem. If I am recording it in the from the front camera, all the words will be in the mirror side view for you. I forgot about that. Sorry for this time. Next time I will shoot again from the बैक कैमरा. इस वीडियो के लिए अब इससे सह लीजिए, हम यहाँ सेक्सुअल लिखे हैं, आपको उल्टा आ रहा है सब ये मिरर में, अब हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो हमसे उल्टा तो लिखा जाएगा नहीं. इस वीडियो के लिए ऐसे रहने दीजिए. नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि बैक कैमरा से रिकॉर्ड करें, बट इट इज़ इसमें अच्छा क्वालिटी आ रहा था, आई बिलीव. ओके, लाइट प्रॉब्लम हट जाता, नो प्रॉब्लम. लेट मी फ्यू मंथ मोर, फ्यू डेज मोर, लोकेशन और बेटर हो जाएगा आपके लिए. ओके, अभी इतना समझ लीजिए. एक होता है ए सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल, एंड सम पीपल यूज टू कॉल दिस ए सेक्शुअल एज एसेक्शुअल. सो इट इज़ ए सेक्शुअल और एसेक्शुअल, इट्स योर चॉइस. आप इसको क्या बोलना चाहो, तो इंग्लिश बोलना नहीं जाना है, टॉपिक पर आते. ओके, so on the basis of origin there are two types of resources, biotic and abiotic. Secondly, on the basis of exhaustibility, exhaustibility के basis पर भी कितने तरह के होते हैं, मतलब खत्म होगा या नहीं होगा, तो आंसर टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड द renewable and one is called the non renewable. थर्ड, on the basis of ownership, मतलब मालिकाना हक कि वो रिसोर्स किसका है, and on the basis of that there are four types of resources. One is called individual resource. What is individual resource? Suppose that I am going to say that this marker belong to me, so I am the individual owner of this marker, है ना. Suppose that I am going to say that this girl belong to me. Okay, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आगे बढ़ रहे हैं. एंड चलो ये बता रहे थे, ये भी बता देते हैं.
चलो छोड़ो, है ना, गोली मारो, आगे बढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट बी फोकस टू योर स्टडीज, नथिंग एल्स, नथिंग पर्सनल. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकता है. देन community resource. What is community resource? As I said earlier, community resource belong to certain community that is living in that area. Okay, suppose that if you have watched the movie name known as Ant-Man, sorry, कोई हम मूवी देखे थे, हमको नाम याद नहीं, कोई साउथ अमेरिका का सीन था. वहाँ पर स्मॉल पॉक्स नाम का बीमारी फैल जाता है, वहाँ के लोग मरते हैं. तो उसमें कुछ लोग थे, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन लिव इन द वाटर एंड वन लिव इन द लैंड. और वो लैंड वाले भी वाटर वाले के साथ मिलकर रहने लग जाते, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट टॉपिक. इंटरेस्टिंग मूवी है, वुमन बेस्ड मूवी है. एक छोटा सा देश है, वो देश सब दुनिया से पावरफुल, ऐसा कुछ सीन है. किसी को अगर पता है तो वो नाम बता दीजिएगा. ओके, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल. नेशनल मीन्स क्या? एनी रिसोर्स दैट बिलोंग टू द कंट्री और द नेशन. किसी देश का रिसोर्स को वी विल कॉल इट व्हाट? नेशनल रिसोर्स. व्हाट इज इंटरनेशनल रिसोर्स? सपोज दैट इसका आंसर आई विल शो यू द आंसर इन दिस बोर्ड. ओके, it is Indian Ocean. Suppose that this is complete Indian Ocean. India lie here, India is here. Suppose that यहाँ से आप बहुत दूर चले जाओ, यहाँ पर कहीं Indian Ocean में. So who will be the पेरेंटल कंट्री ऑफ दिस रिसोर्स? ये रिसोर्स का मालिकाना हक किसके पास होगा? इंडिया. आंसर नो, नेवर. क्या कहते हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि इंडियन ओशन पूरा इंडिया का है. बेसिकली वाई द नेम इंडियन ओशन, है ना. इंडियन ओशन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लार्जर एरिया ऑफ द इंडियन ओशन इज कवर्ड बाय द इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन ओशन. इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ओशन आपका है या, है ना, किसी का वो जागीर नहीं है. My answer is, if some kind of resource is being found in certain distant region, who will be the owner of the resource? Answer will be no one. There will be an international meeting, international agreement. वहाँ पर चर्चा चलेगा कि कौन लेगा इस रिसोर्स को, कितना लेगा, कितना में बटेगा, इस तरह का बातचीत होता है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एरियाज वेयर दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड, दे आर नोन एज एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन. दिस वर्ड you have to learn in the second page, okay, of this chapter. So one is called special economic zone and one is called exclusively economic zone. What is special economic zone? इंडिया का गुजरात, सूरत. ओके, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मतलब होता है सी कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर शिप्स आते हैं, शिप्स उतरते हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ को कुछ प्लेस बहुत ही कम प्राइस में दे दिया गया है कि आप यहाँ पर अपना दुकान खोलिए, फैक्ट्रीज बनाइए, जिससे हम आप क्या करोगे, आप वर्कर्स को लोगे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इंडिया का छवि और अच्छा होगा कि देखो यहाँ पर कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ये होता है, वो होता है. तो इसीलिए क्या किया जाता है, सर्टेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है. मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को कम प्राइस में वहाँ पर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप आइए, ये कीजिए, वो कीजिए. एट द सेम टाइम देयर इज़ इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव जोन, जो कि इंडियन ओशन या बहुत सारे ओशन या कहीं ऐसे जगह पर कोई रिसोर्स पाया जाए जो किसी का ना हो, तो वैसे टाइप को एरियाज़ को कहते हैं इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिवली जोन, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि वो रिसोर्स पूरी तरह होता है ना, जैसे खाना, आप मान लो बहुत किसके भूख लगा है एंड यू आर गोइंग टू द किचन अगेन एंड आस्किंग योर मॉम वेदर द फूड इज कुकड और नॉट, है ना, कंप्लीटेड, जो खाना बन गया कि नहीं बन गया, आप थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रहे हो. तो वो जो थोड़ी थोड़ी देर का जो टाइमिंग होगा, क्या खाने का पकने का लेवल सेम होगा? आंसर विल बी नो. एट सर्टन टाइम व्हेनेवर you go to the kitchen, whenever you go and ask your mother, the level of cooking will be different, है ना. सेम आंसर है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 kinds of status of development. फर्स्ट, potential resource. Potential resource means you have the potential but you are not completely utilizing the resource. It is known as potential resource. आपका औकात है, आप इतना कर सकते हो लेकिन आप करते नहीं हो. It is potential resource. Okay. Second, developed resource. Developed मतलब क्या है कि हाँ, आपको पता चल गया यहाँ पर मेरे पास इतना रिसोर्स है, फिर भी आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो कि आपने समझ लिया है कि मेरे पास इतना है, ये है, वो है. थर्ड, स्टॉक रिसोर्स. स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, लेकिन डेवलप्ड रिसोर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज इट. आपको पता है कि यहाँ इतना है, फिर भी आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन अगर आप वो रिसोर्स को ले नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कितना है, कैसे है, कहाँ है, इट इज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स. थर्ड इज नोन एज स्टॉक रिसोर्स. व्हाट इज स्टॉक रिसोर्स? स्टॉक में रखना मतलब क्या है, फॉर फ्यूचर पर्पस. आप कोई भी चीज़ को अगर जमा करके रखते हो फ्यूचर पर्पस से, इट विल बी नोन एज स्टॉक रिसोर्स.
And the last one, reserved resource. Let me give you this task, okay? In the next detailed video I will explain the difference between the stock resource and the reserved resource, and you have the, if you have the knowledge of understanding, please tell me or please clarify by yourself ki what is the actual difference between stock resource and reserved resource. It is clearly given in your second page or in the third page, okay? दोनों पेज में मिक्स करके दिया गया, सेकंड पेज के लास्ट में एंड थर्ड पेज के बिगिनिंग में। तो आपको एक बार पढ़ के देख लेना, नहीं समझ आया तो हम भी यहाँ हैं, या आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से जाके और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अदरवाइज आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज, ओके, अंटिल यू विल क्रैक द 10th एग्जामिनेशन। उसके बाद देखा जाएगा 11th का भी कुछ होगा तो हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए, मतलब आप सबके लिए। The next term is known as the development of resource, the next heading, okay? After we have completed the first 2 pages of this chapter, now we are moving towards the third page, okay? And at this moment the video is around 20 minutes, okay? 20 मिनट का हो चुका है इतना, मतलब सोच रहे हो I am giving you an overview, but if the overview is this much lengthy, then how much will be the लॉन्ग वीडियो, कि उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये ओवरव्यू ही देखो 40-50 मिनट का ना हो जाए, आई एम नॉट, हम नहीं बता सकते कितना मिनट का ये बनेगा अभी। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते, ओके? So in the third page there are three more important things for you. For example, the development of resource. There is an heading known as development of resource. In this heading there is a question, and the question is, I am going to read it, just listen to me. Human beings used the resources indiscriminately and this led to the following major problems. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा the indiscriminate use of resources can cause what, or the human activities causes the human indiscriminate use of resources causes what, okay? तो हम इंसान हद से ज़्यादा रिसोर्सेज पर जो अत्याचार कर रहा है, उनका जो यूटिलाइज कर रहा है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए या ग्रीड्स को, लालच को पूरा करने के लिए, इससे क्या प्रॉब्लम होता है? आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो what will be your answer? The answer is given here in 2-3 points. Let me tell the answers also, okay? The first point is the depletion of resources for satisfying the greed of few individual. ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज खत्म क्यों होते जा रहा है? तो पहला आंसर है कि ह्यूमन अपने लालच को पूरा करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहा है। सेकंड पॉइंट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इज इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, ओके? और एक्यूमुलेशन का मतलब होना, मतलब रिसोर्सेज के कुछ लोगों के हाथ में होना, ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कारण सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, वन दैट इज हैव एंड सेकंड इज नॉट हैव नॉट, मतलब एक वो जिसके पास है और एक वो जिसके पास नहीं है। तो नाउ द सोसाइटी हैव बीन सेगमेंटेड, सेगमेंट मतलब टूट जाना, बढ़ जाना, तो सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, ओके? नेक्स्ट point, the last point from this topic, and the question is the point is indiscriminate exploitation of resources have led to global ecological crisis, okay? अब बताओ, तो indiscriminate यूज करोगे तो नेचुरल प्रॉब्लम्स तो होगा ही होगा। फॉर ए बेस्ट एग्जाम्पल लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ सुपर होल, है ना? रशिया में एक सुपर बियर होल या ऐसे कुछ नाम से कहा जाता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स डीप। धरती में गड्ढा करते 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 12 किलोमीटर के आसपास हम लोग मतलब रशियंस जो है वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत तबाही मच गया। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि नेचर के साथ खिलवाड़ या छेड़खानी करना बिल्कुल सही नहीं है। नेचर अपने आप को मेंटेन कर लेगा, बस हम लोग अच्छे बन के रहें तो सब अच्छा, ओके? बस यही पॉइंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट वाइज क्वेश्चंस, ओके? इस चैप्टर का खासियत है देयर आर सो मेनी टर्म्स, सो मेनी न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न। सम ऑफ द न्यू टर्म्स, सम ऑफ द few most important terms are, the first term is known as sustainable development. What is called sustainable development? हाँ, what is sustainable development? तो नाम में ही आंसर है sustainable, मतलब बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सोच समझ के जब आप रिसोर्सेज का यूज़ करोगे और इस तरह यूज़ करोगे कि वो आप अपने लिए भी यूज़ करो और आने वाले जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा बचा लो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, पूरा फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखोगे, नो, दैट इज़ द रॉन्ग आंसर, ओके? इस तरह से यूज़ करना है कि आप अपने लिए भी यूज़ कर पाओ और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो आप क्या कर पाओ, बचा पाओ। फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट मी से दिस सेम आंसर इन इंग्लिश फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सुनेगा इंग्लिश में ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द आंसर इज Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. इस तरह से इस्तेमाल हो कि नेचर क्या ना हो, हार्मफुल ना हो, एंड
दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स ऑल्सो। तो यही है कि आप भी यूज़ करो और आने वाला फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाओ। इस तरह से जब रिसोर्स का यूज़ किया जाता है, इट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now next point, the answer is known as, just below that there is another term, Rio de Janeiro. What is Rio de Janeiro? Basically it is a place in Brazil. Okay, where is Brazil? It is a part of South America. South America का one of the largest country, I believe it is the largest country of South America. और इस कंट्री में है इसी कंट्री जिसका नाम है ब्राज़ील, इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, जो कि फ्री फायर खेलने वाले बच्चे जानते होंगे। उसमें पहले एक मैप आता था ब्राज़ीलिया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, तो बेसिकली रियो डी जेनेरो इज द प्लेस वेयर द 2016 ओलंपिक्स है ना, 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुआ था। 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ था दैट वाज द रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, और वहाँ ये उस नाम से ये फेमस है। बट बिफोर दैट देयर इज एन अनदर रीजन। तो यहाँ क्यों फेमस है रियो डी जेनेरो, यहाँ क्यों दिया गया इन योर एनसीईआरटी? बेसिकली 1992 में, इन द ईयर 1992 देयर वाज ए अर्थ समिट, देयर वाज ए इंटरनेशनल meeting that was held in the Brazil, where more than 100 states or the countries, states means countries here, okay, so more than 100 country participated in the participated in the meeting, where the मेन कंसेप्ट और मेन मुद्दा जो कहते हैं ना, मेन मुद्दा क्या था, उस मीटिंग का क्यों बुलाया गया था, इस मीटिंग को अगर आप पूछोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब नेचर से जुड़ा हुआ जो अर्जेंट जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया गया था, और इसी अर्जेंट मीटिंग का नाम था अर्थ समिट 1992, और इट इज ऑल्सो नोन एज रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ओके, सबमिट, तो समिट वाला एक वर्ड होता है, बस सुन लीजिए। समिट का मतलब कोई भी मीटिंग, सम्मेलन कहा जाता है इंग्लिश में, सम्मेलन, जैसे कि G20 सम्मेलन हुआ, G7 देशों का सम्मेलन हुआ, क्वाड्स देशों का सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन। ओके, इट इज नोन एज समिट। ओके, नथिंग एल्स। ओके ओके, नाउ सॉरी फॉर दैट, पता नहीं फ़ोन क्यों बोल रही है। ओके, लेट मी साइलेंट इट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इन दैट टॉपिक रियो डी जेनेरो पढ़ोगे, उसी के अंदर एक और टॉपिक आता है दैट इज नोन एज एजेंडा 21। एजेंडा 21, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई सेड earlier, there are so many new terms that you are going to learn in this chapter. Some of the few most important terms are, first, sustainable development, second, definition of resource, that is simple definition, and the third, which is known as going to be the Rio de Janeiro summit or summit, and the fourth term, agenda 21. What is agenda 21? It is interesting and it is important. Okay, so let me answer this question in Hindi first. देखो, जब रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था तो उसमें बात किया गया कि अब से हम लोग क्या करेंगे, जो भी 100+ कंट्री आए हैं वो अपने अपने घर जाएंगे वापस, मतलब अपने अपने देश जाओ, और वहाँ पर जो सबसे बेसिक, सबसे लोकल लेवल पर जो 21 प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को क्या करो, सॉल्व करो। ओके, टू सॉल्व द 21 लोकल problems that the nation or that the country is facing, and it is known as agenda 21। तो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट मीटिंग के अंदर जो मुद्दा उठाया गया था वो था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन उसके एंड में, इन द एंड ऑफ द मीटिंग, एक जो फैसला लिया गया वो फैसला क्या था, एजेंडा 21। खुद बताओ ना, जो मेरा 21, मेरा जो प्रॉब्लम्स रहेगा, क्या आपके भी वही प्रॉब्लम्स होंगे? नो, माई इश्यूज इन माई लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम यू, योर प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट, माई प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट, है ना, कुछ कुछ अलग होंगे हम दोनों में, और आप कुछ और करना चाहते होंगे, हम कुछ और करना चाहते होंगे, और बस वही समझ लीजिए, और क्या। तो आपका 21 एजेंडा है, मेरा अलग 21 एजेंडा है, दिस इज नोन एज एजेंडा 21। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, you can just go and check it out. Okay, check it out. I don't know what to use, what is the exact word that I have to use here. चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं, द न्यू टर्म, द नेक्स्ट term that is known as resource planning. Okay, we are somewhere between the half of this chapter. ऑलरेडी के 13 पेज है, 13 पेज में से एक्स्ट्रा को अगर आप डिलीट करोगे, इधर उधर का डिलीट करोगे, इट विल बी ऑफ 10 पेजेस. ओके, 10 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से अब हम लोग जो बोलने वाले हैं, इट इज़ द पेज नंबर 4. सो रिमेनिंग 6 पेजेस मोर. आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस वीडियो एज मच एज फास्टर. तो जल्दी करते हैं. रिसोर्स प्लानिंग, देखो अगेन सेम आंसर, व्हाट इज़ कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग. तो रिसोर्स को जब एक प्लानिंग पर्पस के साथ आप जब एक्सिक्यूट करते हो, कि मान लो सपोज दैट अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू 1000 रुपीज़, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि हम ये 1000 रुपये कहाँ कितना खर्चा करें, ऐसे करते हैं, इसमें का इतना ये खरीद लेते हैं, वहाँ इतना ये खरीद लेते हैं. जब आप एक प्लानिंग के साथ कोई भी रिसोर्स का यूज़ करते हो, इट इज़ नोन एज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, बट
एंड सो व्हाट विल यू राइट इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप क्या लिख के आओगे। सो नाउ ट्राई टू लिसन टू माय आंसर। देयर इज अ बेसिक वेरी सिंपल आंसर। द आंसर इज द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्स का जब सोच समझ कर, जब दिमाग लगाकर, जब अच्छे से जब यूज़ किया जाए, जुडिशियस मतलब बहुत ही संभाल के जब यूज़ किया जाए, उसको कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। दैट सिंपल, दैट्स इजी है ना, बहुत सिंपल था, इतना सिंपल था। तो आपको बस यही समझना था, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, just below this topic there is another topic which is known as resource planning in India। अब एक और चीज़, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया नाम का जो हेडिंग है एंड उसके ऊपर जो हेडिंग है रिसोर्स प्लानिंग, इन दोनों के बीच में रिसोर्स प्लानिंग के अंदर में एक छोटे मोटे कंटेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी आंसर द छोटे मोटे कंटेंट टू यू। एंड व्हाट इज द छोटे मोटे कंटेंट? फर्स्ट, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो टेल मी नाउ, अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे नेम 3 states, नेम एनी 2 इंडियन स्टेट वेयर देर इज अ रिच मिनरल्स एंड कोल, जहाँ पर कोल और मिनरल डिपॉजिट भरे पड़े हैं। सो कैन यू नेम दम? शो दे आर व्हाट? दे आर छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी a state which have abundant which have a lots of solar and wind energy। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी भरा पड़ा हुआ है? द आंसर इज कॉल्ड राजस्थान। अगेन गिवन इन, इट इज ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पढ़ के जाना है, क्या पता ये सब भी पूछ सकता है। ओके, पूछा जा सकता है इन द यूनिट टेस्ट एंड इन द छोटे मोटे एग्जाम, नॉट इन द फाइनल एग्जाम, क्योंकि फाइनल एग्जाम में देर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, but again as a knowledge point of view, to boost your knowledge, to enhance your knowledge, you must learn this thing, you must hear or heard these things। okay, आपको ये सुन के जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। now moving towards the next, or even there is given the Ladakh, about something about Ladakh, let me answer it। the cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country, है ना। तो पूरे cold desertic area इंडिया में कहाँ पाया जाता है? आंसर इज कॉल्ड द लद्दाख। ओके, एंड इफ I am not wrong, let me tell you that there are 3 types of desert, not 2 types। if you think that there are 2 types of desert, चलो आप में से कोई बच्चा ये भी नहीं सोचा होगा कि 2 टाइप्स के भी होते होंगे। लोग को लगता है desert just desert होता है। no, there are basically 3 types of desert। I am going to give you the 2 names, you have to find the third name। okay, the first is known as hot desert, the second is known as cold desert। let me give you an example also। the Sahara desert, which is the largest desert in the world, Sahara desert in African continent, it is a hot desert, while even the Thar desert, the Great Indian Desert in India, is a hot desert, while the Ladakh desert, the Dras, ये desert जो होता है ये क्या है? ये cold desert है। तो these are the 2 types of desert। the third type of desert, the name of the third type of desert starts with the spelling T। टी से स्टार्ट होता है, आपको ढूंढना है ये थर्ड टाइप ऑफ डेसर्ट क्या होता है, और एक एग्जाम्पल बताइएगा कि ये थर्ड टाइप ऑफ डेसर्ट कहाँ पाया जाता है या इसका क्या है जो भी होगी। Moving towards the next page, the page number 5, and even before that, page number 5 के just ऊपर, in the beginning of the page number 5 of this chapter, आप you can see here that there is a quotation given by गांधी जी। गांधी जी का एक बात यहाँ पर दिया गया है, कौन सी बात? let me answer it again। there is enough for everyone's need and not for anybody's greed, है ना। मतलब लोगों के लिए बहुत है धरती पर, मतलब for their needs but not for their greeds। लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, बट नीड्स को पूरा करने के लिए धरती पर बहुत ज़्यादा है। अगर लोग लालच पूरे करने निकल गए तो ये रिसोर्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर नीड के हिसाब से यूज़ करेंगे तो दिस रिसोर्सेस आर मोर देन सेटिस्फाइंग, मोर देन ओवर ही है। मान लो कम नहीं है हम लोग के पास रिसोर्स, बट हम इंसान इसको बहुत ही बेदर्दी से यूज़ करके ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ द अनदर पॉइंट। Next, moving towards the another box, in this chapter you will find 2-3 types of different small boxes। okay, so the next box is about the few more important lines। for example, small is beautiful, it is a book written by a person named as Schumacher anything, I don't know the exact pronunciation। book में spelling जो है वो लिख देते हैं, आप पढ़ लो, एनसीईआरटी खाई लीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या मेरे साथ मतलब आप स्कूल में भी पढ़ते हो, ऐसा थोड़ी कि हम ही आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, बट समवेयर आई बिलीव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, न्यू सेक्शन 2023-24, आई एम टेलिंग यू दैट दिस वीडियोस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ मी फॉर एवर टिल द क्लास 10। उसके बाद जुड़ो ना जुड़ो आपकी मर्जी, क्लास 10 पढ़ो
अच्छे से पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आपको सारा चीज़ें पढ़ाएं। और आई एम ऑलरेडी डन विद मैनी थिंग्स इन लाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इट इज़ ए बुक, okay, you will be asked in the examination who was the writer of this book, या who wrote small is beautiful, the name of the book, okay, and the answer is called Schumacher, okay, let me see the spelling first, Schumacher। तो इस आदमी के द्वारा लिखा गया एक बुक का नाम है द आंसर इज कॉल्ड व्हाट, इस आदमी के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, बट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हुम, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन फिलोसफीज, गांधीज के आइडियाज से इंस्पायर्ड होकर इस आदमी ने एक बुक लिखा जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगेन द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हु इन विच रिपोर्ट, कौन से रिपोर्ट में पहली बार इस टर्म का यूज़ किया गया था, इस शब्द का वर्णन किया गया था या जिक्र किया गया था, तो आंसर है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ओके। 1987 में एक मीटिंग बुलाया जाता है, 1987 में, उस मीटिंग का नाम था ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रूटलैंड इज़ बेसिकली नेम ऑफ द प्लेस, वहाँ पर ये मीटिंग बुलाया गया था और उस मीटिंग में बोला गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द टर्म वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रूटलैंड कमीशन, ओके। एंड आफ्टर द रिपोर्ट, द कंप्लीट रिपोर्ट को पढ़कर एक नया बुक लिखा गया, ओके, और उस बुक का नाम क्या था, तो वो भी दिया गया है आवर कॉमन फ्यूचर। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। मतलब इस बॉक्स के अंदर 4-5 चीज़ें पढ़ना है। कौन कौन सा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम का बुक किसने लिखा? चुमैचर नाम के आदमी ने लिखा। किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा? बाय द आइडियाज ऑफ गांधीयन फिलोसफी। नेक्स्ट, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार कौन सा टर्म यूज हुआ था, तो आंसर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक और बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद ये इस बुक का जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर क्या लिखा गया था, एक बुक पब्लिश किया गया था, उस बुक का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो दिस आर समवेयर, आई बिलीव दैट इज नॉट ए ओवरव्यू, इट इज समवेयर डिटेलिंग, है ना। हम इसको डिटेली करें एक तरीके से, तो अगर हम इसका वीडियो जो डिटेल आएंगे वो बाद में कभी लाएंगे, अभी सब चैप्टर को हमको कवर करना है एक एक करके, तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, है ना। एंड बाकी आप पर है। तो नेक्स्ट टर्म, द न्यू हेडिंग, द लैंड रिसोर्स, ओके, वी हैव डन विद द रिसोर्सेस। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग सिंपल वे में, ओके, इसको मिटा रहे, जरा सुनिएगा। नाउ फोकस ऑन मी, ओनली ऑन मी, ओके, जरा सुनो। बात ये है, इस चैप्टर को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के टाइप्स क्या है, और रिसोर्सेज के क्या बताए हैं, रिसोर्सेज के क्या कहते हैं उसको, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये तो बोलना ही भूल गया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया नाम का टॉपिक था। उस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, 3-4 स्टेप होता है कोई भी रिसोर्स को प्लानिंग करने के लिए इंडिया में। सबसे पहले क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स है, एंड इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि कितना है, मतलब पता करो कि क्या है और वो कितना है, तो ये पहले करेंगे। देन सर्वे एंड मैपिंग, वहाँ पर सर्वे किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा। देन जितना चीज़ हमको यहाँ भी मिल रहा है, मान लो मुझे यहाँ सोना मिल रहा है और इंडिया देश में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितने सोने हैं, तो उस सोने के साथ ये प्रेजेंट सोनों को कंपेयर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, की जो मिला उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कितना है। तो ये 3 स्टेप्स आपको पढ़ के जाना है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाले टॉपिक में से, ओके। एंड आफ्टर दैट द 4th थिंग जो बोल रहे थे आपको, रिसोर्स, ये छोटे मोटे टर्म्स जैसे कि व्हाट इज रियो डी जेनेरो और समिट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, या व्हाट इज अर्थ समिट बता दिए, व्हाट इज एजेंडा 21 बता दिए, व्हाट इज ये स्मॉल, गांधी जी का कोटेशन आपको बता दिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है बता दिए, शोमैचर नाम के एक आदमी ने लिखा है ये बता दिए। मतलब after all these things now, okay, and after these things now you are going to move towards the new topic. The first topic resource done, रिसोर्स कंप्लीट, ओके, आई बिलीव। द सेकंड पेज, एंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन छूटा हुआ है अभी भी रिसोर्स के अंदर, जैसे हम बोले डिटेल्ड वीडियो बाद में लाएंगे, जैसे आप पूछोगे और क्या छूटा, ये तो सब बता ही दिए। नो, इवन आफ्टर द 40 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो, अप्रोक्स 40 मिनट्स, अभी भी हम कुछ चीज़ें नहीं बताया, जैसे कि मान लो इंडिया से कितना दूर जाओगे तो वहाँ तक का रिसोर्स आपका कहलाएगा, भारत देश का कहलाएगा। आंसर इज कॉल्ड 22.2 नॉटिकल माइल्स, ओके। तो इतना नॉटिकल माइल्स कहूँ, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स
एक तरह का मेजरमेंट होता है जो कि सी में वाटर के लिए किया जाता है, ओके, और द स्पेस के लिए। बट इसी को आप 22.2 किलोमीटर भी कह सकते हो। दिस इज सेम जैसे कि 1 किलोमीटर, सॉरी 1 माइल, माइल सुनेंगे MILE, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? आंसर इज कॉल्ड 1.6 किलोमीटर। इंडिया इज ए कंट्री वेयर द टर्म किलोमीटर यूज्ड एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और द वेस्टर्न कंट्री किलोमीटर की जगह माइल्स नाम का टर्म यूज होता है, तो आपको ये समझ के जाना है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक अवर, दैट इज कॉल्ड द लैंड। अब लैंड में आओगे तो आपको क्या क्या पढ़ना, चलो यहाँ से अब डिटेलिंग को रोक देते हैं। आई होप आपको पढ़ाने का चीज़ समझ आ रहा है, तो बोलिए तो हम और डिटेल में, मतलब जिस तरह भी रिसोर्स को एक्सप्लेन किए हम, चलो लैंड पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर देंगे। एंड इन द थर्ड वीडियो सॉइल, इसमें 3 मेन टॉपिक है, रिसोर्स, लैंड, सॉइल। तो ये 3 पार्ट्स में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नाम के चैप्टर को आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, समझा देंगे। और जो जो रिसोर्स नाम का टॉपिक से छूट गया हम आपको सेकंड वाले टॉपिक में भी कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं। आई होप this video was beneficial to you. I have tried to speak in English for the first time in my video. There was a issue with the writing. No problem. Let me cover this whole chapter in this way. फ्रंट कैमरा से शूट करेंगे, बट आफ्टर दैट जल्द से जल्द हम कुछ इसका जुगाड़ करेंगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक इट, मतलब वो लाइक बटन नहीं कह रहे, बस आपको अगर ये लाइक अच्छा लगा कि हम इस तरह से पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं, या करना है कि नहीं करना, जस्ट गिव योर ट्रू फीडबैक, ओके, कि करें या ऐसे या नहीं करें या कुछ और करें, तो बस बताइए और कुछ नहीं। तो इस तरह आपका रिसोर्स कंप्लीट हो गया। लैंड वाले में आप पढ़ोगे लैंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, द लैंड पैटर्न क्या क्या होते हैं। देन प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कुछ ऐसे लैंड भी है जो कि आज भी सर्वे नहीं किया जाता। 100% ऑफ लैंड में से ओनली 97% और 93% लैंड इज कैलकुलेटेड, वाई द रिमेनिंग 7% लैंड इज नॉट इंक्लूडेड। इसका रीज़न आपको पढ़ना है। लैंड कंजर्वेशन, ज़मीन को कैसे कैसे बचा सकते हैं, एंड लैंड डिग्रेडेशन, कैसे कैसे ये ज़मीन खराब होता है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है। सो दिस इज़ द सिंपल टर्म, ओके, सिंपल टॉपिक। बट द थर्ड टॉपिक इज अगेन more important than the second one, okay. The third topic is known as soil. What will you learn in this topic? You will learn that how is the formation of soil is done, what are the factors that help in the formation of soil. Then you will learn what are the types of soil. Then you will learn what is soil conservation and what is soil degradation. In the soil conservation you will learn about the topic like shelter belts. You will learn about the counter plugging. You will learn about strip cropping. And in land degradation, so soil degradation, you will learn about soil erosion, what is gully erosion, what is sheet erosion. So these are some of the interesting topics. And the classification of soils, you have to learn different kinds of soil like alluvial soil, black soil, red soil, yellow soil, laterite soil, desert soil, desertic soil, or the arid soil. So these are the remaining topics of this chapter. I hope we will cover this topic also as soon as possible, if I got your support only then. So let us end up this video here. बस ओके, ख़त्म। थैंक यू। जुड़े रहे साथ में। टेलीग्राम लिंक प्लीज़ ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर सारा नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे।